It's a wonderful topic. In fact, I tell you, motivational speakers very frequently use it. और आपको भी बोलना आएगा अगर आपने ये 3 ग्रेट पावर्स विद एवरीवन. कोई भी नहीं कह सकता कि ये मेरे पास नहीं है. हम सिर्फ कॉन्शियस नहीं हैं उनको यूज करने के लिए. द डे वी ग्रो कॉन्शियस, और जो हायर परफॉर्मर्स हैं वो ध्यान रखें, आप इन पावर्स की मदद से यू कैन अचीव एनीथिंग. You can achieve. It's a wonderful topic covered by the principal. Applaud him. Very good. And now I'll request Mr. Arvind. In fact, Mr. Surinder was to speak on this occasion and on mathematics options, career options in mathematics. And that is what I was talking of, that each of the topics has got plenty of career options, only the thing we are not aware of. And that kind of awareness is required to be created among you all, though it appeared to be a bit theoretical today. And that is how sometimes we will have collection of interested students for a particular area and cover up those areas during those days. Now Mr. Arvind, if he is online and he is able to listen to me, can he come online? Mr. Arvind, he is Haryana Civil Services Officer, posted at Loharu, and sometimes it was his time. Let us see if he is there online. Otherwise, if we are not able to get connected to him, then we will look into Mr. Surinder. He will give you mathematics options. Mr. Arvind is going to be very useful for you throughout these academic careers that we have in this school going on. He has been in this coaching and other areas at Delhi for a number of years. I hope he has come online. Welcome him. Hello, am I audible and visible to all? Yes, you are audible and visible also, though the photo has to be still on full scale. It is on a small scale. Let us see, maybe you can just wait for a few seconds. Otherwise, your voice was audible. It was fine. Okay, then. People. Okay, then I'll start, and you can in the start. Meanwhile, they will arrange. Yes, definitely. Thank you. Okay. Okay. Jai Hind to all. Jai Hind. It is a wonderful opportunity for all the students and parents of the area that they are having this kind of session in which career counseling tips, what students can do after 12th class, what are the options they have, all these kind of things are being discussed. Now, I will not take much time and I will take you to the slides which I have prepared for this session. And I will request the technical team to please share the screen so that slide is visible to all. Are the slides visible? I hope you are still working on it. Let us see. Okay, till the time they make the slides visible, I will start with a story which is related to Chanakya and Chandragupta Maurya. हम बात कर रहे हैं लगभग 2000 साल पहले की. पाटलिपुत्र मगध राज्य की राजधानी होती थी और वहां पे नंदा शासनकाल था. वहां पे चाणक्य नाम का एक गुरु होता था जो कि काफी विद्वान
व्यक्ति था और नंदा शासन ने उस गुरु को अच्छी इज्जत नहीं दी और वो थोड़ा बेइज्जत महसूस करके उस राज्य से बाहर निकला। और वो जब रास्ते में जा रहा था, खेल रहे, और उन बच्चों में एक बच्चा है जो कि बाकी सबको काम दूसरा काम करिए। चंद्रगुप्त मौर्य उस लड़के का नाम था और चाणक्य ने देखा कि ये लड़का बहुत ही है और उसने उसको अपने साथ लिया और जाके उसकी ट्रेनिंग की कि कैसे मैं इसको एक कुशल और अच्छा शासक बनाऊं। उस ट्रेनिंग के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लिया और उसी नंदा साम्राज्य पे, जो कि उस टाइम मगध पे राज कर रहा था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पे अटैक किया। इस पहले अटैक में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की दोनों की हार हो गई। हारने के बाद वो फिर से वापस आ रहे थे और अपना भेष बदल के किसी जंगल में एक उम्रदराज लेडी के पास खाना खाने लगे। उम्रदराज लेडी ने उनको खिचड़ी दी एक कटोरे में डाल के, और चंद्रगुप्त मौर्य और दोनों ने क्या किया, उस खिचड़ी के कटोरे के बीच में उंगली डाली और खाने लग गए। और जैसे ही उन्होंने उंगली डाली उनका हाथ जल गया। और वो जो बूढ़ी और समझदार औरत है वो तभी उनको कहती है कि आप लोग भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने की। उन्होंने पूछा क्या? कि आपने सीधा बीच में जहां चीज गर्म थी वहां अटैक किया तो आपका हाथ जलना लाजमी था। कोई भी चीज धीरे धीरे और सहज पकती है, इसलिए साइड से शुरुआत कीजिए और बीच में तो आप अपने आप पहुंच जाएंगे। अगर हम इस पूरी स्टोरी को ध्यान से समझें और इसमें से कुछ कंक्रीट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा कि पहली चीज करने के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव था, उसको मगध से नंद साम्राज्य समाप्त करना था। दूसरा, उसने एक कैपेबल इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जिस क्रिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड कर सके और नंदा साम्राज्य को समाप्त कर सके। तीसरा, चाणक्य ने ये खुद पे थर्ड, ही प्लान्ड द जर्नी कि हम कैसे कैसे बढ़े। Each step was planned. And third, काउंसलिंग कैरियर और 12 कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में जब तक इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे एक इंडिविजुअल को कि उसके इन स्किल्स क्या हैं, वो जीवन में टारगेट को कितना मोटिवेटेड है, उसको स्किल्स को रिफाइन करने के लिए गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं, उसकी जर्नी का पूरा प्लान रेडी है या नहीं, और अगर उसमें कोई कोर्स करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है
वो भी टाइमली किया जा रहा है या नहीं। तो कैरियर काउंसलिंग में इन सारी चीजों की जरूरत होती है। नाउ हम पहली चीज ये डिफाइन करेंगे कि कैरियर क्या है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि कैरियर क्या है, तो इसमें हमें एक सिंपल ही चीज समझनी होगी कि कैरियर आजीविका है। आजीविका का मतलब है व्हाट वी डू फॉर ए लिविंग। हम जीवन जीने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसा जीवन, एक हैप्पी और कंटेंट लाइफ जीने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको करते हुए हम एंजॉय भी करें, हम अर्न भी करें, हम सीखें भी और अपने जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं। To all of you, hello, You can continue, Mr. Arvind. hello, Yes, we are listening you. You can continue, Mr. Arvind. hello. हाँ, मैसेज भेज दो। Okay, okay, Continue, Okay. it is going on. okay. So here I have listed what is career. जैसे बलारा सर ने समझाया कि कैरियर वही है जिसमें हम अर्न करते हुए, लर्न करते हुए जीवन में अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचे। और इसके लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये आइडेंटिफाई